Hello everyone. Today we will discuss about cell organelles और cell organelle में भी हम आज पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. So today's learning objectives are we will discuss about cell organelles and mitochondria. So what are cell organelles? Cell organelles are the subcellular bodies which may be membrane bonded and without membrane. So they are important to perform various metabolic activities inside the cell. So these are highly organized subcellular protoplasmic structures. These are highly organized subcellular structures हैं ये, and they play a very important role inside the cell. They have distinctive structure and function. They have their unique structure and their unique function inside the cell. अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो सेल ऑर्गेनेल, जो कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है. और इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स हैं. सो दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. So next, today we will discuss about the mitochondria. So our main focus is on this mitochondria. Mitochondria हमने पढ़ा है, it is commonly known as powerhouse of cell. इसको ATP mill भी बोलते हैं, and is also known as storage battery of cell. So बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है. इसमें अगर हम नाम की बात करें, सो ग्रीक में जो माइटो है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, chondrion का मतलब होता है granules. So thread like granules की तरह structure इनका होता है. So this is mitochondria. So first this was discovered or observed by Kolliker in 1880. अगर हम discovery की बात करें तो सबसे पहले इसको observe किया है Kolliker ने. Then it was named as fila by Flemming ने इसको fila कहा था, filament like structure. Then it was named as Bioplast by Altmann in 1890. So this is the etiology, जो नाम रखा गया है इसका. Mitos का मतलब होता है thread, chondrion का मतलब होता है granule. So thread like granule is called mitochondria. So this term mitochondria was given by Benda in 1897. This is important. If we discuss about its occurrence, so कहाँ पे होता है ये? It is absent in prokaryotes. Prokaryotes में सभी membrane bonded cell organelles absent होती है. So present in all eukaryotic cell except mature mammalian RBCs. So जो mature mammalian RBCs हैं उनमें ये absent होता है. Then shape की बात करते हैं. Shape भी इसकी कोई fix नहीं है. It varies from cell to cell. इसकी shape बहुत तरह की हो सकती है. It may be filamentous, it may be sausage shape, discoid हो सकता है, granular हो सकता है. So these are some shapes. Granular है, fibrillar है, spherical है, oval है, sausage, discoid shape है. और yeast के केस में this is spherical. The next number, जो number है इसका, that depends upon the metabolic activities of cell. जितना ज़्यादा active cell होगा उतना ही ज़्यादा इसका number होगा. For example, अगर हम बात करते हैं flight muscles of insect की, जो flight muscles के cell हैं insect के, they have highest number of mitochondria. There are approximately 50,000 mitochondria in flight muscle cell of insect. और सबसे पहले Kolliker ने जो mitochondria observe किए हैं, they were observed in the flight muscle of insect के cell में सबसे पहले observe किया गया था mitochondria. So the number depends upon cellular activities. It is 1 in case of yeast and in some algae like Chlamydomonas, जो कि motile algae है, green algae motile algae है, unicellular है, and chlorella which is non-motile algae and unicellular algae, that is also green algae. 25 are present in sperm cells and 500 to 1000 in liver cells, 50,000 in the flight muscles of cell of insect. इसके अलावा there is a giant amoeba which also contains 50,000 mitochondria, and name is Chaus.
पोजीशन की बात करें, सो जो पोजीशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, कि किस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, उसी के हिसाब से इसकी पोजीशन होती है सेल के अंदर। देन अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो जो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उनमें एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव एरिया नहीं है वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होंगे। Let's discuss about its ultrastructure. अगर हम इसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो शेप है इट वेरीज, बहुत तरह की शेप होती है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन्स हैं, वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर इज़ इनर मेम्ब्रेन। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी इन्वेजिनेशन से इसके अंदर बनते हैं दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज क्रिस्टे। इनको कहा जाता है क्रिस्टे। और ये जो क्रिस्टे हैं दे बियर सम टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोला जाता है ऑक्सीजोम और एटीपी सिंथेटेज, एंड दिस इज द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस और वी कैन से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन्स, एक आउटर मेम्ब्रेन है and that membrane will form its envelope, इसका envelope बनाती है बाहर से कवरिंग। और अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें सो इट्स थिकनेस रेंजेस बिटवीन 60 to 75 आर्मस्ट्रॉन्ग इन थिकनेस। आउटर मेम्ब्रेन इसकी होती है स्मूथ, इट इज़ स्मूथ और एंटायर, और इट इज़ परमिएबल टू सर्टेन मेटाबोलाइट्स। कुछ एक जो मेटाबोलाइट्स हैं दे कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ये एंट्री और एग्जिट है इट इज़ कैरिड आउट बाय सम स्पेशल पोर प्रोटीन्स जिनको कहा जाता है पोरिन्स। सो दिस परमिएबिलिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड बाय सर्टेन प्रोटीन्स विच आर नोन एज पोरिन्स। इसके अलावा इसमें होते हैं एंजाइम्स विच आर कनेक्टेड विद लिपिड सिंथेसिस। ये जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ एक एंजाइम्स विच आर कनेक्टेड और कंसर्न्ड विद लिपिड सिंथेसिस। सो लिपिड की सिंथेसिस होती हैं उसके एंजाइम्स इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसमें प्रोटीन कंटेंट की बात करें सो आउटर मेम्ब्रेन में कम प्रोटीन होता है एज़ कम्पेयर टू इनर वन। इनर जो मेम्ब्रेन है उसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। सो दिस इज़ द ब्रीफ समरी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट कम्स इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ आल्सो परमिएबल टू सर्टेन मेटाबोलाइट्स। कुछ एक जो मेटाबोलाइट्स हैं दे कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन एंड इट इज़ रिच इन फॉस्फोलिपिड। हमें पता है जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर फॉस्फोलिपिड्स, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और इन फॉस्फोलिपिड को कहा जाता है कार्डियोलिपिन्स भी। एंड ये जो कार्डियोलिपिन्स हैं ये बनाती हैं मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल फॉर सर्टेन आयंस। जो आयंस हैं कुछ एक दे आर अनेबल टू मूव आउट और मूव इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑफ दिस कार्डियोलिपिन्स। इसके अलावा इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन में जो कि हम पढ़ते हैं जैसे क्रैब साइकिल में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स आल्सो एंड इट आल्सो कंटेन्स सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसमें हम देख सकते हैं जो ये अंदर की मेम्ब्रेन की इन ग्रोथ्स हैं, जो ये इन ग्रोथ्स हैं दे विल फॉर्म दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको कहा जाता है क्रिस्टे। इन्हें कहा जाता है क्रिस्टे। और इनका जो मेन फंक्शन है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया। और इनकी शेप की अगर बात करें दे आर ट्यूबुलर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में ये ट्यूबुलर होती है और इट इज़ प्लेट लाइक इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, और ये होती है प्लेट की तरह इन केस ऑफ एनिमल सेल्स एंड वेसिकल लाइक इन यूग्लिना। सो इसकी जो क्रिस्टे की शेप्स हैं वो वेरी करती हैं सेल टू सेल। जो क्रिस्टे होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूएशन विद आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन की इन ग्रोथ से बनते हैं और वहाँ पे जो गैप है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन। सो देयर इज कनेक्शन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस क्रिस्टा। सो अगर हम बात करें दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा, ये क्रिस्टा है ये वाला स्ट्रक्चर।
दिस इज़ द क्रिस्टा, इट इज़ फॉर्म, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी इनवेजिनेशन से, इन ग्रोथ से बनते हैं क्रिस्टे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इनर मेम्ब्रेन as well as cristae possesses tennis racket like particles, या जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें और जो ये क्रिस्टे हैं इनमें होते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि टेनिस के रैकेट की तरह स्ट्रक्चर है। इसको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, या कहा जाता है इसको F0 और F1 पार्टिकल, और इसको कहा जाता है ऑक्सीजोम। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम, ये है ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर। अब अगर इसके नंबर की बात करें सो एक सेल के अंदर एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो ऑक्सीजोम का नंबर है ये हो सकता है 1 × 10⁴ to 1 × 10⁵ ऑक्सीजोम्स पर माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो ऑक्सीजोम है इनका जो मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स इन synthesis of ATP, so it contains an enzyme which is ATP synthesis, और ATP बनाने में ये help करता है। So that's why this is called powerhouse of cell। अब ये जो ऑक्सीजोम है इसके होते हैं 3 पार्ट्स, हेड है जो कि सोलन पोर्शन है, देन स्टॉक एंड देन बेस। अगर बेस की बात करें इसका जो साइज है इट इज़ 45 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका जो हेड है इट इज़ 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो अगर हम हेड की बात करें सो हेड इज़ द एंजाइमेटिक पोर्शन, जो हेड है दिस इज़ द एंजाइमेटिक पोर्शन एंड इट हेल्प्स इन phosphorylation of ADP into ATP, which is the energy currency. So this head region act as ATP synthase. So head is enzymatic portion. It is projected towards matrix. This is towards matrix, जो अंदर का internal fluid है inside the inner membrane of mitochondria. So basically इसके जो constituents हैं it consists of 3 alpha and 3 beta polypeptides. इसमें 3 alpha पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और 3 बीटा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो स्टॉक है इट हैज़ 3 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, 3 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ गामा। इसके अलावा एक होता है इसमें डेल्टा and epsilon, this one, gamma, delta and epsilon, 3 polypeptides हैं which form this stalk region. Then both stalk and head form F1 part. So this stalk and head, these both the parts form F1 part of the elementary and structure or oxysome. Then F0 or base has a rotor, जो ये F0 है, this is the F0, and it has a rotor and a stator structure. इन दोनों के combination से बनता है हमारे पास ये इसका base, and this is known as F0. अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स की। सो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और एक है द एरिया विच लाइज इनर टू द इनर मेम्ब्रेन। सो देर आर 2 चैम्बर्स, आउटर और इनर, वी कैन से आउटर और इंटर मेम्ब्रेनस चैम्बर, और इसको कहा जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सो इट लाइज बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इट इज़ लेस डेंसर एज़ कम्पेयर टू द इनर वन, इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इनर चैम्बर। अगर हम इनर चैम्बर की बात करें सो इट लाइज इनर टू इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड इनर चैम्बर। इट इज़ फिल्ड विद डेंसर ग्रैनुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है इट इज़ मोर डेंसर एज़ कम्पेयर टू दिस आउटर चैम्बर। This is the inner chamber, this is the outer chamber. So it contains, this matrix contains various enzymes for the synthesis of various proteins, lipids, and very important one, that is the reaction of respiration which is Krebs cycle. So इसके सभी के सभी जो enzymes हैं they are present in the
इनर मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन की जो इनर चैम्बर की जो अंदर मैट्रिक्स है उसमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है राइबोसोम्स विच आर 70s। Then it has number of circular naked mitochondrial DNA. These are very important structure which are present in mitochondria. इसके अलावा इसमें होती है vitamins like riboflavin and some minerals like calcium, phosphate ions, manganese and magnesium ions. So these are the elements which are present in mitochondrial matrix. Then next there are two states of mitochondria. अगर हम दो स्टेट्स की बात करें, एक स्टेट जब रेस्पिरेशन का रेट बहुत कम है और एक्टिविटी सेल के अंदर बहुत कम है, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर somewhat we can say inactive or less active. So that state is known as orthodox state. When ATP synthesis is low, when there is less requirement of ATP, तो जो उस टाइम जो स्टेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको कहा जाता है इनएक्टिव और ऑर्थोडॉक्स स्टेट। सो इस स्टेट में जो फीचर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, मीन जो फ्लूइड है दैट इज़ मोर इन अमाउंट, और जो क्रिस्टे हैं दे आर फ्यू इन नंबर, सो क्रिस्टे आर लेस इन नंबर। वाइल इन केस ऑफ अदर स्टेट उसमें ये अपोजिट हो जाएगा। सो when the activity engaged in ATP synthesis, when mitochondria is engaged in ATP synthesis, so we can say जब ATP की requirement बहुत ज़्यादा होती है, then that state is known as active state of mitochondria or condensed state. उस state को कहा जाता है active state और condensed state. When the requirement of ATP is very high, so that state is known as active state. So इसमें क्या होता है, it shows development and depends upon the physiological activity of the cell. जो माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट है उसकी जो एक्टिविटी है that depends upon the physiological activity of the cell. In addition to this, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट inner to the inner membrane and it contains approximately 60 enzymes in it. So जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है उसमें लगभग 60 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, there are enzymes for synthesis of proteins, synthesis of lipids, synthesis for the some respiratory reactions like Krebs cycle. तो सभी के सभी जो enzymes हैं they are present in the matrix. Then most of them they occur in the matrix of the mitochondria. Next, biogenesis. Biogenesis means synthesis of this mitochondria, how it is formed. So there are different views. There are approximately 3 views. अलग-अलग 3 views हैं कैसे बनते हैं mitochondria. So the first one is de novo synthesis. So it was given by Beckwith and Harvey in 1914. इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो डेवलपमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट डेवलप्स फ्रॉम मटेरियल और प्रिकर्सर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है उसमें ऑलरेडी इसके प्रिकर्सर्स हैं. इट मीन्स द रॉ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. So how they proved this? They have done one experiment on sea urchin egg cell. जो sea urchin है उसके egg cell में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करी और जो सेल है सेल्स को कट किया इनटू 2 पार्ट्स. एक पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, बट दैट पार्ट हैज़ न्यूक्लियस. सो जो वो पार्ट था जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस था, they observed that due to presence of nucleus, the nucleus contains DNA and RNA, and these DNA and RNA were responsible for formation of new mitochondria. So that's why they gave this hypothesis that the cytoplasm contain the ready-made material for the synthesis of mitochondria. The next hypothesis is from non-mitochondrial membranes. So जो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो मेम्ब्रेन्स हैं लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की मेम्ब्रेन, वो जो मेम्ब्रेन्स हैं दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस वाज गिवन बाय हॉफमैन एंड ग्रेग इन 1958. दिस कंसेप्ट वाज given by these 2 scientists.
they've observed that the development of mitochondria is from nuclear envelope by evagination, means outgrowth of the nuclear membrane. So nuclear membrane की जो evagination है, evagination means outgrowth, उसकी वजह से mitochondria बनता है. Then there was a other scientist Lever in 1956. He observed that जो mitochondria है उसके origin के लिए responsible है Golgi apparatus. जो Golgi bodies हैं, they are responsible for the origin of mitochondria. And there was other person, Robertson 1964. इन्होंने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से, इनवर्ड ग्रोथ से और इनवर्ड ग्रोथ से बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बाय द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिफ्रेंसिएशन है उससे नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं. Then the last viewpoint was from pre-existing mitochondria. So formation of new mitochondria from pre-existing mitochondria, and this is the most followed viewpoint. So it was observed by Penne in 1952. He observed that the development of mitochondria is by growth and constrictions or division of pre-existing mitochondria. जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हीं की ग्रोथ से और फिजन से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं. सो हाउ दे ऑब्जर्व दिस? पैने फाउंड दैट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स था फाउल का, दे फाउंड दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फाउल कंटेन these mitochondrias in pairs. जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे अकर इन पेयर्स इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फाउल. तो वहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से. दे मे बी बाय द fission or growth or constriction like as that of bacterial asexual reproduction. The next very important feature, that is the semi-autonomous nature of mitochondria. Autonomous, semi means half, auto means self-nomous, self-regulatory nature of mitochondria. So mitochondria के पास कुछ एक ऐसी machinery है so that it can synthesize its some proteins. So that's why this is known as semi-autonomous nature of mitochondria. Let's discuss this. It has its own DNA. So इसके पास अपना DNA है, और वो जो mitochondrial DNA है that can replicate independently, that is not dependent upon the nuclear DNA. जो nuclear DNA है उसके ऊपर ये dependent नहीं होता है. It can replicate independently irrespective of nuclear DNA. It can produce its own mRNA, messenger RNA, transfer RNA और rRNA, ribosomal RNA. इसके अलावा इसमें present है 70s ribosomes that helps in protein synthesis. Then it can synthesize some structural proteins. इसके अलावा ये कुछ proteins बना सकता है अपनी. Most of the protein, but जो most of the proteins है which are required for synthesis of various material of mitochondria, so it is dependent upon the nuclear DNA or the instructions from nucleus. So इसलिए जो mitochondria है it is not totally independent. It cannot synthesize its all the proteins. So that's why this is semi-autonomous, because इसमें जो most of the proteins हैं they are formed by the instruction of nucleus. इसके अलावा जो नया mitochondria है it develops by the division or binary fission of pre-existing mitochondria, जैसे कि हमने बैक्टीरिया की asexual reproduction में पढ़ा है. So there is one theory which is commonly known as symbiotic theory of mitochondria. It is thought that there is an hypothesis that this prokaryotic cell which entered inside the eukaryotic cell and shows symbiosis, means mutualism, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. और जो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ एक फीचर्स हैं they are similar to that of some primitive prokaryotes like that of bacterial cell. So these are some features which explains the semi-autonomous nature of this mitochondria, that is the powerhouse of cell. Then lastly we have some important function of this mitochondria. So function of mitochondria, first of all it is known as powerhouse of cell or ATP mill or storage battery of the cell. So
its main function is in production of ATP, that is energy currency of cell. इसके अलावा इसके फंक्शन है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सम बायोकेमिकल्स में जैसे क्लोरोफिल है, कुछ एक कैरोटिनॉइड है, साइटोक्रोम्स हैं. सो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बनाने में भी ये हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ दिस वेरियस कंपोनेंट्स, biochemical components. इसके अलावा it helps in synthesis of fatty acids because it contain various enzymes which are required for the synthesis of fatty acid. So fatty acid भी बनाने में help करता है mitochondria. It can synthesize some of the amino acids like जैसे कि हमारे पास है glutamic acid और aspartic acid. Aspartate, they are formed from the intermediates of Krebs cycle like alpha ketoglutarate, जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट हैं, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है which is the precursor of this Krebs cycle. So वो हेल्प करते हैं कुछ एक अमाइनो एसिड बनाने में like glutamic acid and aspartic acid. इसके अलावा it helps in regulation of calcium ion. कैल्शियम आयंस की रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये उसकी स्टोरेज में हेल्प करता है और उसके रिलीज़ में हेल्प करता है. इसके अलावा इसका फंक्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है जिसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, दिस इज़ कैरिड आउट बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. सो इट हेल्प्स इन मैटरनल इनहेरिटेंस. Then in case of human beings or other animals, it also helps in synthesis of heme, that is the very important component of hemoglobin and myoglobin. So these are some important function of mitochondria. So this is all about for today lecture. Thank you. Have a great day.